2 Timothy chapter 2. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2। We're going to make it pretty simple. If you know where we were last time, go back a page. तो अगर आप जानते रहेंगे तो आप उससे पहले की पृष्ठा में जा सकते हैं। So, as we read in the last message, और अगले पिछले संदेश में जो हमने पढ़ा है all scripture is given by inspiration of God. कि सारे जो वचन है वो परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है। One of the things that I need you to understand is the importance of the Word of God. हमें ये समझने की आवश्यकता है परमेश्वर का वचन की महत्वपूर्ण को। As Christians, there is no greater final authority for us. हमारे मसीह होने के नाते मसीही जीवन में और दूसरा कोई अंतिम अधिकार नहीं है। As important as every person is in the body of Christ, और ये सब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जो मसीह की देह में है। none of us outranks the authority of the Bible. और बाइबल के अधिकार को कोई अलग स्थान नहीं ले सकता। 2 Timothy chapter 2, we're going to start in verse 1. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से हम भी शुरू करेंगे। Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. और जो बातें तूने बहुत से गवाहों से सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दो जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। It is vitally important that we understand the message is the same. और हमें ये समझने की आवश्यकता है जो संदेश है वो वही है। I do not judge the messenger. मैं संदेशक को जो है न्याय नहीं करता, I judge the message. लेकिन जो संदेश है उसका न्याय करता हूँ। If the message matches scripture, we're fine. अगर संदेश वचन से मेल खाता है तो वो सही है। Every man, every woman delivers the gospel in a slightly different way. हर एक पुरुष हर एक स्त्री जो है जो शुभ समाचार को थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। But the gospel is the same regardless of who gives it. लेकिन जो शुभ समाचार है वो वही है जो हमें दी गई है। One of the major problems that Christianity across the globe is facing today जो आज पूरे संसार में जो एक बड़ा सा प्रॉब्लम है वो आज लोग सम्मुखीन करते हैं वो ये है is that we are getting tangled up in all of the things that don't matter. कि जो हमारे लिए कोई परवाह नहीं उसके ऊपर लोग पीछे चल जाते हैं। Personalities don't matter. जो हमारा व्यक्तित्व है वो कोई मायने नहीं रखता। Just because a person is famous on television does not mean they are biblically right. अगर कोई व्यक्ति टेलीविजन में बहुत ही जाने माने व्यक्ति है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। Being someone who works in the corporate world, I understand that a lot of times famous people got that way for bad reasons. क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इन सब चीजों में जाने माने लोगों के होने की वजह से लोग इसके पीछे चल जाते हैं। And a lot of times what happens is the first thing people will compromise is the truth. और इसलिए बहुत से लोग जो है समझौता कर देते हैं किस चीज के ऊपर वो सच्चाई है। Because if I want lots of people to come and be around me and be friendly with me, I can't offend them. अगर बहुत से लोग मेरे चारों ओर आ जाते हैं मेरे पीछे आ जाते हैं तो मैं उन लोगों को शायद दोषी नहीं बना सकता। Let's look at verse 4. वचन 4 में आप देख सकते हैं No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता हो तो इसलिए कि अपने भर्ती कराने वाले को प्रसन्न करे अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। Now jump down to verse 12. अभी वचन 12 में आप अभी देख सकते हैं If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. यदि हम धीरज से सह रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। If you want to understand the character of God, you're going to have to read verse 13. अगर आपको प्रभु का चरित्र समझना है तो आपको वचन 13 को पढ़ सकते हैं। If we believe not, yet he abideth faithful,
he cannot deny himself. यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। This is the definition of absolute holiness. और ये परमेश्वर की पवित्रता का एक मूल्य विषय है। God's character is not dependent upon my obedience to him. परमेश्वर का जो चरित्र है वो मेरे ऊपर नहीं, जो मैं विचार को रखता हूँ। If I choose to live in absolute disobedience to God, अगर मैं प्रभु के विरोध चलता हूँ या फिर प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलता, it does not change the fact that he is still holy and he is still God. तो प्रभु का चरित्र को वो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर अभी भी पवित्र है, वो हमेशा रहेंगे। What it does is it makes the world look at me and say, my God is not worth serving. लेकिन ये क्या हो जाएंगे कि लोग हमें देखकर ये कहेंगे कि आप हमारा जो परमेश्वर वो इतना महान नहीं है। Remember what I said in the first sermon. पहला संदेश में मैंने क्या कहा वो आप याद करें। It is easy to say, I love God. ये बहुत आसान है कहना कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, It is totally different to live that I love God. लेकिन वो अलग ही हो जाता है जैसे मैं प्रभु से प्यार करता हूँ ऐसा जीना या फिर जी सकता हूँ या फिर नहीं। For years I have heard the statement, judge not. You're not supposed to judge somebody. काफी सालों से मैंने एक कहावत सुना कि आपको जो है न्याय नहीं करना है। The problem with that statement is it's not found in the Bible. वो कहावत जो लोगों का शब्द है वो हम बाइबल में नहीं पाते हैं। The context of that is don't judge when you are doing the same thing. संदर्भ ये है कि जब आप वही काम को करते हैं तो इसका मतलब आप दूसरों को न्याय नहीं कर सकते उस विषय पर। Has anybody ever heard the phrase, do not do as I do as I say? क्या आपने कभी सुना रहेगा जैसे मैं बोलता हूँ जैसे मैं करता हूँ तुम भी ऐसा मत करो? How many of you understand when someone says that there's a reason they're saying it? और इसके कहने के एक पीछे है कारण है। They know they are wrong. उन लोग जानते हैं कि हाँ उन लोग गलत हैं। They don't want you to tell them they're doing wrong. उन लोग नहीं चाहते कि उन लोग को कहे कि उन लोग गलत कर रहे हैं, They want you to just let them do wrong anyway. क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि उन लोग जो कर रहे हैं वो उन लोग गलती करते रहें। The problem is God's not going to let you get by with that. समस्या ये नहीं कि परमेश्वर आपको उन लोग के साथ फंसाए नहीं रखेंगे। Whether or not you are faithful and whether or not I am faithful, चाहे आप विश्वास योग्य हैं या फिर नहीं, या फिर मैं विश्वास योग्य हूँ या फिर नहीं, He is faithful. लेकिन वो विश्वास योग्य है। Verse 15. वचन 15 में, Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से कामों में लाता हो। When we are studying the word of God, it takes time. जहाँ प्रभु का वचन का अध्ययन करते वो समय लेता है, It is a sacrifice on my part. और ये मेरे हिस्से में एक बलिदान के स्वरूप है। The one thing I cannot get back in life is time. जो जीवन में मैं वापस नहीं पा सकता हूँ वो क्या है? एक समय है। If I lose money, I can work and make that money back. अगर मैं पैसा खो दूं आज तो मैं काम करके दोबारा पैसा कमा सकता हूँ। If I lose my house, I can find another one. अगर मैं अपना घर खो दूं तो मैं दूसरा घर भी ले सकता हूँ। I can never get time back. लेकिन मेरा जो समय खोया हुआ है उसको मैं वापस नहीं ला So सकता। what God is asking from us is to give of ourselves to Him. तो प्रभु हमसे क्या मांग रहा था कि हम अपने आप को प्रभु के लिए दे सकें, Because He came to give us life more abundantly. क्योंकि वो हमें बहुतायत का जीवन को देने के लिए आया है। The Bible says, I am crucified with Christ. और बाइबल में लिखा है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा गया हूँ। Nevertheless, I live. अभी मैं खुद में नहीं जीता, Yet not I, लेकिन मैं नहीं, but Christ liveth in me. लेकिन मसीह मुझ में जीता है। Therefore, I am giving myself, I am giving up my life इसलिए मैं अपने आप को देकर अपने जीवन को त्याग कर देता हूँ, to know more of who God is. ताकि मैं ये और जान सकूं कि परमेश्वर कौन है। Because when the world comes and questions what I believe, क्योंकि जब संसार आकर ये प्रश्न को करेंगे कि मैं क्या विश्वास करता हूँ, if I've not given of myself to learn who God is, अगर मैंने खुद को ये समर्पित नहीं किया कि प्रभु कौन है ये सीखते हुए, I'm going to be ashamed when they know more about the Bible than I do. जब मुझसे भी ज्यादा उन लोग बाइबल जानेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा उस समय। One of the funniest things I have seen as a pastor और एक मजाकिया बात है जो मैं एक पास्टर होने के नाते मैंने देखा है, सुना is है, when we would go out soul winning, door to door, door knocking. जहाँ हम लोगों के द्वार द्वार जाकर हम खटखटाकर हम जब सोल विनिंग के लिए जाते हैं,
People would invite others to come to church. और लोग बाकियों को कलीसिया में आने के लिए निमंत्रण को देते हैं They wanted them to be their guests that coming Sunday to the और service. आने वाले रविवार में सर्विस में उन लोग चाहते हैं कि उन लोग एक अतिथि के जैसा कलीसिया में आ सके। The visitor would come to church, उन लोग जो नए वाले लोग उन लोग कलीसिया को आते हैं, and the member was nowhere to be found. लेकिन जो सदस्य है कलीसिया के उन लोग दिखते नहीं कलीसिया में। They look at me and go, "We were invited by such and such," and I'm like, हमें उन लोगों के द्वारा हमें कलीसिया में बुलाया गया था, लेकिन उन लोग खुद ही नहीं है कलीसिया में। "I have no idea where they are." मुझे नहीं मालूम कि उन लोग अभी कहाँ हैं। I call them, मैं उन लोग को कॉल करता हूँ, "Hey, your visitor's here. Where are you at?" आपका जो विजिटर्स है वो यहाँ पर आ चुके, लेकिन आप कहाँ हो? "Oh, we're not going to be there today. आज हम नहीं आ सके, My son's got a football game." मेरा बेटा का फुटबॉल गेम है। How weird does that look to the visitor? ये विजिटर्स लोगों के लिए कितना अजीब लगता रहेगा उन लोगों के लिए। Clearly, your Savior that you were telling me about yesterday isn't nearly as important as your football game today. लेकिन जो आपका उद्धारक जो आपके लिए कल को बहुत ही जरूरी था, लेकिन आज फुटबॉल गेम की वजह से वो जरूरी नहीं रहा। One of the visitors that came that Sunday और एक विजिटर्स जो आए उस रविवार में told his son he wasn't going to play in the same game because they were all going to church. और उन लोगों ने कहा कि उनका जो बेटा वो भी खेलने वाले थे उस दिन पे, लेकिन उन लोगों ने कलीसिया आया बोल के उन्होंने खेल को छोड़ दिया। How do you think that visitor felt? आपको क्या लगता रहेगा कि वो जो नए लोग आए थे कलीसिया में उन लोगों को कैसा लगा रहेगा? Do you think they paid any attention during the service? क्या आपको लगता रहेगा कि उन लोग कलीसिया में कुछ ध्यान भी दिया रहेगा? Because the Christian that invited them to come to church didn't think it was important either. क्योंकि जो क्रिश्चियन लोगों ने उन लोगों को बुलाए थे कलीसिया में, उन लोगों को लगा कि ये कलीसिया जरूरी नहीं है हमारे लिए रविवार को। The next Sunday that family showed up. लेकिन अगले रविवार को वो परिवार कलीसिया में आए। They were like, "Hey, have you seen our visitor this Sunday?" I was like, I wouldn't come back if I were them. अगर मैं था तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन हमने देखा हमारे विजिटर्स को जो आए थे, They're probably where their God is, लेकिन जहाँ पे उन लोग हैं वहाँ पर उन लोग जा चुके हैं, at the football field, लेकिन उन लोग फुटबॉल फील्ड में where you were last week worshiping. जहाँ पर तुम अगले हफ्ते थे, Now you're ashamed लेकिन अभी तुम शर्मिंदा हो because you didn't study to show yourself approved unto God. क्योंकि तुमने अब परमेश्वर का वचन का अध्ययन नहीं किया। परमेश्वर के सम्मुख तुम अपने आप को दिखाने योग्य नहीं रहा, You studied to show yourself approved to yourself. क्योंकि तुमने खुद को ही जो है अपने आप को दिखाने के लिए तुमने अध्ययन किए रहेंगे, Now you've made yourself God, लेकिन अभी तुमने अपने आप को भगवान बना दिए and God will not be honored in that. और परमेश्वर उस पे उसको महिमा नहीं मिलेंगे। Rightly dividing the word of truth. और सही तरीके से वचनों का खंडन करना। In order for you to not be ashamed in front of the world, अगर आप संसार के सम्मुख लज्जित नहीं होना चाहते हैं, you're going to have to know the Bible. तो आपको उसके लिए बाइबल जानने की आवश्यकता होंगे, And the Bible is going to have to know you. और बाइबल जो है आपको जानने की आवश्यकता है। One of the questions I like asking young preacher boys, और जो जवान प्रचारक हैं उन लोगों को मैं सवाल पूछने के लिए मुझे अच्छा लगता है, ये है वो है, did you read your Bible today? क्या आज आपने अपने बाइबल को पढ़ा है? What did you read in your Bible? बाइबल में आपने क्या पढ़ा है आज? What did the Bible read in you? बाइबल ने आपको क्या पढ़ा है आज? Because it is not enough to simply read a Bible verse just to read it. ऐसा नहीं कि आप केवल नाम के वास्ते एक अध्याय को पढ़ें बाइबल, You are told to study to लेकिन- show yourself approved. लेकिन आपको कहा गया कि ताकि आप बाइबल का अध्ययन कर सके, ताकि आप ग्रहण योग्य बने। That is that reproof part that we read about earlier. जो हम पिछले वचन में हमने पढ़े थे, ताकि I have- रिफर होने, I have to know what the doctrine is, and I have to make my life match it. मुझे डॉक्ट्रिन को जानने की आवश्यकता है और उसमें मुझे मेल खाने की आवश्यकता है वचनों पर। With that comes verse 16. उसको हम वचन 16 में हम देखते हैं, But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। Now jump down to verse 23. अभी वचन 23 में आप देख सकते हैं, But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. पर मूर्ख और अभिज्ञा की विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। When you submit the Word of God to your opinion, you create more problems than should be there. जब आप अपने विचार पे बाइबल को समर्पित करते हैं, जो आप
जितना सोचते रहेंगे उससे भी ज्यादा आप समस्या को बना सकते हैं, That is the definition of religion, और उसको धर्म का एक डेफिनेशन हम कहते हैं, where I am willing to throw the Bible aside for my own opinion. जहां पर मैं अपने खुद के विचार के लिए बाइबल को मैं अलग रख देता हूं, This is where church splits come from. जहां से ही कलीसिया बढ़ जाते हैं। I don't like the color that Brother Lordson's tie is. ब्रदर लॉर्डसन का टाई मुझे पसंद नहीं है, I think he should wear blue, शायद उसको ब्लू पहनना चाहिए था not purple. या फिर अलग कलर के, So I'm going somewhere where the pastor wears a blue tie. तो मैं अलग अलग पहनने वाला हूं। फिर We laugh, but it happens all the time. ये हम हंसते रहेंगे, लेकिन ये हमेशा अक्सर होता है। Rather than look at what the Word of God is and what the Word of God says, ये देखते हुए कि जहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे, I elevate my opinion above the doctrine and Word of God. और मुझे जो है मेरे विचार से भी ऊपर जो है प्रभु की शिक्षा को मुझे रखने जरूरी है। Because usually what happens before I get to that point, क्योंकि उस पॉइंट में जाने से पहले क्या होता है, the Holy Spirit has been convicting me over something that the pastor preached. और जो पासवा ने प्रचार किया उसके ऊपर पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विक्ट किया है। I didn't like what he preached. मुझे पसंद है वो जो प्रचार किया, It upset me. मुझे दुख हुआ। So now I need to find an excuse to leave. अभी मुझे एक बहाना ढूंढना है मुझे जाने के लिए। And rather than making my life submit to the doctrine of the gospel, और प्रभु की शुभ समाचार की शिक्षा पर मुझे समर्पित करने से I find something a lot easier to do. लेकिन मुझे और भी कुछ आसान चीज मिल जाती है करने के लिए, I make a religion to myself and find someone that matches it. और मैंने कुछ और धर्म बना लिए और जहां पर मेरे से मेल खाता है उससे मैंने मेल खा लिए। In the United States, there are over 300 churches that shut down every year. यूनाइटेड स्टेट में करीबन हर साल 300 से अधिक कलीसियाएं बंद हो जाती है। As sad as that is, 5,000 churches every year split. और इससे भी दुखी की बात है कि साल भर में करीबन 5,000 जो कलीसिया है वो बट जाते हैं। 90% of those church splits are over opinion. और ज्यादातर जो 90% कलीसिया जो बट गए हैं वो उन लोग के विचार के वजह से हुए हैं। I have personally witnessed growing up a church split over the color of the carpet. और ज्यादातर मैंने जो है ऐसे कलीसिया को देखे जहां पर उन लोगों ने रंग को लेकर, कारपेट को लेकर उन लोगों ने कलीसिया जो है बट गए। It doesn't mean anything. और इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। What matters is the people coming to Christ on that carpet. मायने क्या रखता है कि उस कारपेट के ऊपर मसीह के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। It can be a dirt floor for all God cares. और शायद वो मिट्टी का भी जमीन हो सकता है, God just wants the person. लेकिन प्रभु केवल व्यक्ति को चाहिए। God wants that person to come to know Him as Savior. और प्रभु चाहता था कि वो व्यक्ति आकर उद्धारक को जान सके, To God, everything else doesn't matter. क्योंकि प्रभु के लिए बाकी सब चीजें कोई मायने नहीं रखता। One of the things that I wish Christians would understand, एक बात ऐसा है जो मैं काश ऐसा होता कि मसीह लोग समझे, your opinion only matters to you. क्योंकि आपका जो विचार है वो केवल आपके लिए शायद लाभदायक हो सकता है। And something that I had to learn early on in life. और पहले ही जो मुझे जीवन में सीखना था I am only important to me. कि मैं बस खुद के लिए ही जरूरतमंद हूँ। My opinion is only important to me. मेरा जो विचार है वो केवल मेरे लिए जरूरी है, God's word matters to God. लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभु के लिए मायने रखता है। He's better than I am. वो मेरे से भी ज्यादा बेहतर हैं, He is holier than I will ever be. और जो मैं हो सकता हूँ उससे भी अधिक परमेश्वर पवित्र है। Therefore, I have to submit my will to the will of God. इसलिए मुझे मेरी इच्छा को प्रभु की इच्छा में समर्पित करना है। If God was enough for you to trust Him for salvation, अगर प्रभु ने आपके ऊपर ये भरोसा किया कि उद्धार के लिए, He is enough for you to live in Him. तो वो भी ये महत्वपूर्ण होंगे कि आप उनमें जिए। There are people who will die for their faith every day. और ऐसे लोग हैं जो हर दिन अपने विश्वास के लिए मरते हैं। Jesus never asked that of us. परमेश्वर ने हमसे वो कभी भी नहीं पूछा है। He told you to live for Him, उसने कहा कि हम उनके लिए ताकि जी सके, to be a living sacrifice, ताकि हम एक जीवित बलिदान बन सके, holy and acceptable unto God, पवित्र और ग्रहण योग्य प्रभु के प्रति, which is your reasonable service. जो तुम्हारा प्रभु के प्रति एक सेवा हो। That's the starting point. और वहीं से शुरुआत का एक मुख हो जाता है। Because when you get to there,
जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं, where you are actually offering yourself as a sacrifice to God, जहां पर आप अपने आप को खुद को एक जीवित बलिदान के स्वरूप समर्पित करते हैं, now the Holy Spirit can instantly take over and let you do His will. अभी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर कर अपना इच्छा को करवा सकता है, Because you have realized that now all that matters is Christ. क्योंकि आपने अभी समझा कि सब मायने वही रखता है जो मसीह है। Verse 19. वचन 19 में, Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. And let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है कि प्रभु अपनों की पहचान ना हो, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। Now let's jump down to verse 25. अभी हम 25 वचन में देखेंगे, In meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. वो विरोधियों का नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे और वे भी सत्य को पहचाने। The greatest part about this verse इस वचन का एक मुख्य विषय ये है is once again the demand of us कि हमारा जो मनुष्यत्व है to invest time of our life into someone else. ताकि हम हमारे जीवन की जो समय है किसी के जीवन में, ताकि हम उसको खर्च कर सके। But Lord, they want to argue over what the Bible says. लेकिन प्रभु उन लोग जो बाइबल के दी उसके ऊपर उन लोग वाद विवाद करना चाहता है। Give of your time anyway. लेकिन आप फिर भी अपना समय को दें, Love them to Jesus. और जैसे यीशु ने किया वैसे तुम उन लोग से प्यार कर। It's not easy, ये आसान नहीं है, but it's worth it. लेकिन वो हमारे लिए अगर कार्य योग्य है, At the end of the day, क्योंकि दिन के अंत में the question becomes not what have I done for Christ, प्रश्न ये नहीं होगा कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया है, but what has He done in my life. लेकिन उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। I am a new creature in Christ. मैं प्रभु में एक नया सृष्टि हूँ, Old things are passed away. सब चीजें बीत गई, Behold, all things are become new. देखो सब कुछ नया हो गया है। That is what the world is looking for. और वही संसार आज देखता है। Religion says, I can make you different धर्म कहता है कि हम तुम्हें अलग बना सकते हैं if you will do these things. अगर तुम ये करोगे वो करोगे तो। Jesus says, I don't need you to do anything प्रभु कहता है कि मैं नहीं चाहूंगा कि तुम कुछ भी करो other than surrender. अपने आप को समर्पित करने के अलावा। You can't do enough. तुम सब कुछ शायद कर सकते हो, There is no work you could ever do to be good enough to God. और आप कभी प्रभु के प्रति अच्छे बनने के लिए ऐसा कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। There is nothing I could ever do that will impress God. ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकूं। That is why God says, surrender yourself to me. इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मुझ पर अपने आप को समर्पित कर दो। Chapter 3, verse 10. अध्याय 3 वचन 10 को हम देखेंगे भी। But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, महनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। The first thing Paul says is you've heard and you've seen what I believe. और पौलुस कहता है कि तुमने सुना है जो तुमने देखा है, सुना है कि मैं क्या विश्वास करता हूँ। But you've also seen how what I believe affects my life. लेकिन आपने ये भी देखा कि कैसा मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में कैसा वो प्रभाव पड़ता है। Your life, a lot of times, is the only reflection of Christ the lost will ever see. और आपका जीवन वही है जो बहुत से समय प्रभु यीशु मसीह का जो चमक है वो आपके जीवन में बने रहेगा। As a Christian, you are a direct reflection of the Savior that redeemed you. और जो उद्धारक ने आपको उद्धार दिया है वो आपका एक चमक होंगे दूसरों के प्रति। If the world cannot tell a difference between your life and their life, अगर संसार ये अंतर को नहीं बता पाएंगे आपका जीवन को लेकर, उन लोगों के जीवन को लेकर, they will choose their own life every single time. और हर समय में ही उन लोग अपना जीवन को ही चुनेंगे, Because you've given them no reason to want to be different. क्योंकि आपने कोई ऐसा कुछ मतलब ही नहीं छोड़ा कि आप अलग है कि नहीं।
Brother Lordson and I were talking today. आज मैं और ब्रदर लॉसन हम बात कर रहे थे, The biggest enemy of the church today आज के समय सबसे बड़ा जो दुश्मन है कलीसिया का, is the church itself. कि वो कलीसिया खुद ही है। Because Christians are willing to throw their brothers and sisters out the window. क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग अपने भाई बहनों को कलीसिया की खिड़कियों से बाहर फेंकना चाहते हैं, If it means that they get to keep their own personal pride intact. क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन लोग अपने समय को, अपने घमंड को उन लोग रख सकते हैं। Rather than looking at them and saying, Jesus loved you, I can love you, let's figure this out and serve the Lord together. ये बोलने के बजाय कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, हम चलो एक साथ होकर प्रभु की हम सेवा करें। Far too often, Christians focus on everything other than Christ. लेकिन बहुत से समय लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर देखने के बजाय उन लोग दूसरों के ऊपर देखते हैं, And the ones that lose in the end of that are the lost. और जब उन लोग खो देते हैं तो उन लोग का ही क्या है, उन लोग का ही अपना नुकसान है। The Bible says, if our gospel be hid, अगर हमारा सुसमाचार छिप जाएंगे, it is hid to them that are lost. ये उन लोग के लिए एक वो है जो खो चुके हैं। You have already met the Savior. आपने पहले से ही प्रभु को मिल चुका है, You have come to Christ for salvation. आपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह में आ चुका है। So if you don't surrender your life to Christ अगर आज आप अपने आप को प्रभु में समर्पित नहीं करेंगे, and daily choose to crucify yourself that he may be glorified, ताकि अगर आप हर दिन अपने आप को अगर आप समर्पित नहीं करेंगे तो ताकि उन्हें महिमा मिल सके, the world will never know that there's a difference in your life. तो संसार कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ तो अलग है। You can say you believe the Bible all day long. आप कह सकते हैं कि मैं हमेशा प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास रखता हूँ, The world will never care. लेकिन संसार इसके बारे में कोई परवाह नहीं करेगा। They want to see your life be different. लेकिन उन लोग ये देखना चाहते हैं कि आपका जीवन अलग है कि नहीं। There's a statement that is used a lot in this world. इस संसार में ऐसा कहा हुआ है एक शब्द वचन जो बहुत से लोग कहते हैं, People will never care how much you know आप जितना जानते हैं लोग इसके बारे में कोई परवाह नहीं करेगा, until they know how much you care. लेकिन जब तक ये नहीं जानेंगे कि आप कितना परवाह करते हैं। Do you love your Savior enough to love those lost people? क्या आप अपने उद्धारकर्ता से इतना प्यार करते हैं कि आप उन लोग से भी प्यार कर सके जो खोया हुआ है? Here's a bigger question. ये एक प्रश्न है आपके लिए। Do you love your Savior enough to love your fellow Christians? क्या आप इतना प्रभु से प्यार करते हैं कि आप जो खोए लोगों को भी प्यार कर सके? Through the trials, हर परेशानियों में से, through the storms, बहुत से आंधी तूफानों में से, through the arguments, बहुत से ऐसे विवादों में से, through differences of opinion, और बहुत से अलग अलग विचारों में से, and both of you glorify the Savior. कि दोनों में ही आप प्रभु उद्धारकर्ता का महिमा कर सके। If you are willing to submit yourself to Scripture, अगर आज आप इस वचन पर अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, you can work through anything. तो आप बहुत से चीजों के लिए काम कर सकते हैं, But only if you are willing to submit to the perfect Word of God. अगर आप केवल उस शुद्ध वचन में अगर आप अपने आप को समर्पित करेंगे। You have to take your time to not be ashamed before God. आपको समय को लेना है ताकि आप प्रभु के सम्मुख लज्जित ना हो। Taking 5 minutes a day and reading your Bible बाइबल को पढ़ने के लिए हर दिन 5 मिनट लेना will make a world of difference in your life. तो आपके जीवन में बहुत चीजें अंतर होंगी, बहुत चीजें बदल सकते हैं। Because the vast majority of Christians don't take 5 minutes in a year to read their Bible. क्योंकि बहुत से ज्यादातर संख्या में मसीह लोग साल भर में 5 मिनट भी समय नहीं देते हैं बाइबल पढ़ने के लिए। This and I will close. और ये कहते हुए मैं समाप्त करूंगा यहाँ पर। I'll even prove it. I'll move my Bible over here. Okay. In the United States, यूनाइटेड स्टेट में the average Baptist ज्यादातर जो बूढ़े हैं will spend 4 to 5 minutes every 12 months reading their Bible. हर एक 12 महीने में ज्यादातर लोग 5 से 6 मिनट तक बाइबल पढ़ने के लिए लोग समय को देंगे। This explains why when people ask them questions about how to go to heaven, और ये लोग हैं जो प्रश्न को करते हैं कि कैसे स्वर्ग में जाना है, they have no idea how to answer. लेकिन उन लोग के पास कोई जवाब नहीं कि कैसे जवाब देना है। They spend more time listening to their pastor preach the Bible लेकिन उन लोग के पास उन लोग ज्यादातर समय को जो है पास्टर को प्रचार को सुनने के लिए उन लोग समय को देते हैं than they do reading the Bible that their pastor just preached. जो पास्टर ने जो प्रचार किया जो बाइबल पढ़ते समय।
In the New International Version of the English Bible, बाइबल की न्यू इंटरनेशनल वर्जन में, there are 17 verses that are completely omitted. क्योंकि जो 17 जो वर्सेस से वो बाइबल से हटा दिए गए हैं, Not skipped over, the number and the verse are gone. क्योंकि जो नंबर और जो वर्स है वो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। When asked why they did that, the response was simple. जब ये पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया है, उसका जो जवाब होंगे बहुत ही साधारण है। They gave a textual reason. उन्होंने ऐसे कुछ मतलबों को दिए हैं, They tried to hide behind historical documents. और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ऐतिहासिक, उसको छिपाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। But when asked why the numbers on the verses were missing, और अगर पूछें कि उस वर्स के जो नंबर्स वगैरह है क्यों छिपाया गया है, the statement was made that the average American Christian doesn't read their Bible enough to notice. उन्होंने कहा कि कम लोग जो है बहुत से लोग बाइबल को कम पढ़ते हैं। It is heartbreaking to see the American church falling apart because no one reads their Bible. ये दुखी की बात ये देखते हुए कि अमेरिकन जो कलीसियाएं हैं उन लोग बाइबल कोई भी नहीं पढ़ते ज़्यादातर लोग। If I can give you any level of encouragement this evening, अगर आज अभी मैं आपको एक कुछ उत्साह वाली बात बता सकूं तो, the Word of God is your roadmap for life. क्योंकि प्रभु का वचन जो है आपके जीवन के लिए एक श्वास के जैसा है। If your life is falling apart, अगर आपका जीवन नीचे गिर रहा है इस समय, it would be a good idea for you to open your Bible and find Yep. out where it's missing. एक अच्छा कारण होंगे कि आप बाइबल को खोल सके और देख सके कि कहाँ पर क्या खोया हुआ है मेरे जीवन में। There's a statement that is often made. और ऐसा स्टेटमेंट जो काफी से लोग कहते रहते हैं अक्सर, A Bible that is falling apart is the sign of a Christian who is not. और जो इसीलिए वो गिरता है क्योंकि जो मसीह लोग जो समझते हैं वो नहीं है उन लोग। The Bible is the only thing that will anchor you to faith in Christ. क्योंकि बाइबल वही एक माध्यम होंगे जो आपको अपने विश्वास को प्रभु में मजबूत बना सकता है। I will ask you this final question मैं before we pray. अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। What is your life anchored to? आपका जीवन किस चीज में एंकर है इस समय? Is your life anchored to the Word of God or to your opinions? क्या आपका जीवन जो है प्रभु के वचनों में बने रह रहा है या फिर आपके विचार पर? And between those two choices, what's more important to you? और दोनों ही चुनाव में आपके लिए कौन सा ज्यादा जरूरी है? Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for the people here this evening. जो यहाँ पे लोग हैं उन लोग के लिए आपको धन्यवाद हो। Father, thank you for your word. आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Father, I pray that you would use your word to help us today. प्रभु आज आप अपने वचन का इस्तेमाल करें ताकि आप हमें मदद कर सके इस समय, That you would use your word to strengthen us. ताकि आप अपने वचन का इस्तेमाल हमें मजबूत बनाने में कर सके, And that we would submit our lives to your word. ताकि हम हमारे जीवन को आपके वचनों पर समर्पित कर सके, And that we would anchor our lives to the unchanging, faithful word of God. ताकि जो कभी बदलेगा वैसा वचन के ऊपर, ताकि नहीं बदलेगा वचन के ऊपर, ताकि हम अपने को समर्पित कर सके। Father, use your word to build up the Christians here अब अपने वचनों को अपने मसीह को बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करें, by allowing them to realize that our faith revolves around you and your word. ताकि उन लोग यह अनुमति दे सके कि अपने आप को, ताकि उन लोग आपके वचनों के प्रति ताकि उन लोग समर्पित कर सके। Thank you for everything, Father. सब चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद हो, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। Pastor Lordson. Head still bowed, eyes still closed. Let's keep our eyes closed and head bowed. Excuse me. The psalmist says, "Thy word is a lamp unto my feet भजन संगीत में लिखा कि आपका वचन मेरे पाँव के लिए एक ज्योति है and a light unto my path." और मेरे मार्ग के लिए एक रोशनी है। And if we will stick to the word of God, अगर हम वचन पर बने रहेंगे we will always have light and directions correctly. तो हमारा मार्ग में हमेशा रोशनी और रहेंगे और हमारा दिशाएं सही रहेंगे। The word of God is magnified even above the names of God. परमेश्वर का वचन जो है अब प्रभु यीशु मसीह के नामों से ऊपर उसको बढ़ावा दिया गया है। Psalm 138 verse 2, "Thou hast magnified thy word above all thy names." भजन संगीत में लिखा कि आपने अपने वचन को अपने नामों से भी ऊपर उठाया है। May we anchor ourselves in the word of God. ताकि हम हमारे जीवन को प्रभु के वचनों में बनाए रखें।
may we hunger and thirst to seek, to read, and to study the Word of God daily, ताकि हम हर दिन प्रभु के वचनों को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि हम भूखे प्यासे हो सके, and not become too comfortable. ताकि हम बहुत आरामदायक ना हो सके। Spend few moments in silence. You pray to God, Lord, please help me today आज आप प्रभु से दुआ करें कि प्रभु आज आप मुझे मदद कर, to read your Word, ताकि आपके वचनों को मैं पढ़ सकूं, to anchor my life upon Thy Word, ताकि मैं मेरे जीवन को आपके वचनों पर बांध के रख सकूं, and that I might invest my life in showing Christ through the Bible to someone. ताकि मैं मेरे जीवन को इस्तेमाल कर सकूं किसी को यीशु की ओर अगुवाई करने के लिए। Whatever I read and study from your Word, जो भी मैं आपके वचन से अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, may I teach others also. ताकि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं। This moment you pray इस समय आप प्रार्थना करें, quietly before the Lord. प्रभु के सम्मुख आकर प्रार्थना करें। Father, we thank you and praise you for this evening. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं इस शाम के समय के लिए। Help us not to linger away from your Word, आपके वचनों से हटने के लिए हमें मदद ना कर पिता but to परमेश्वर, be stuck in thy Word, O लेकिन God. आपके वचनों पर बने रहने के लिए सहायता करें। For when we trust in you जब हम आपके ऊपर भरोसा करेंगे, and in thy Word, आपके वचन पर, you will direct our path. ताकि आप हमारे रास्ताओं को अगुवाई कर सके। We thank you, Lord, this evening इस शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, for speaking to our hearts. हमारे हृदय में बात करने के लिए, Help us to come again. ताकि हम दोबारा आ सके। पिता, Help us to listen to your Word again. हमें मदद कर ताकि हम दोबारा आपके वचन को सुन सके। Lord, work in our hearts tonight, O God. आज रात हमारे हृदय में आप काम करें पिता, Do a new thing in our life. हमारे जीवन में नया काम कर सके। Bless the preacher प्रचारक को आशीष करें, and bless him to come with many more truths tomorrow again. ताकि कल को बहुत से सच्चाइयों को लेकर हमारे बीच आ सके। Bless my neighbor sitting next to me, और मेरे जो नेबर है, उनको जो बैठा हुआ है, उन लोगों को आशीष करें, that he may come again, ताकि वो दोबारा आ सके, and that she may come again, ताकि वो भी दोबारा आ सके, that each one of us ताकि हम में से प्रत्येक लोग, may bring someone again, ताकि हम किसी ना किसी को हमारे साथ ले आ so we सके, can invest in your Word, O ताकि God. हम आपके वचनों पर, ताकि हम समय बिता We सके, can invest in someone's life again. किसी के जीवन में हम दोबारा से खर्च कर सके। पिता, Bless us, O Father. हमें आशीष करे। पिता, We give you glory and honor. हम आपको आदर महिमा देते हैं, We give you the हम आपको praise. स्तुति देते हैं। In Jesus' sweet name we यीशु मसीह के pray. मुझे नाम से मांगते हैं, And all God's people said, आमीन। Amen and amen. God bless you all.